کا ہے آرزو کا کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ تجلیوں کے کفیل تم ہو یا رسول اللہ، تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجزن دامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت بس ان کی نسبت، رہے سلامت بس ان کی نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ محمد شاہزیب جاوید غوثی گنجالوی صاحب یہ نعت رسول کریم آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے، اور کیا خوبصورت اشعار ہیں اس نعت کے، جب بھی ہم سنتے ہیں ہمیں بہت ہی اچھا لگتا ہے، اور خاص طور پہ یہ لائن خدا کی روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے، بہت خوبصورت۔ جن بھی شاعر نے لکھا مجھے نہیں معلوم جن کا کلام ہے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، ان کے درجات بلند کرے، اور ہم سب کو نعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل سے پڑھنے کی توفیق دے۔ خیر رمضان کا ایک اور سلسلہ جی، آج 16واں روزہ، 16واں ہمارا پروگرام یا 16ویں قسط، اور میں ہوں حسب معمول عمران حسن، اور میں ہوں ارملہ حسن۔ امید کرتے ہیں آپ ٹھیک ہوں گے، روزہ اچھا گزر رہا ہوگا، اور آج بھی ہم ایز یوزول ٹرانسمیشن کے اندر بات کرنے والے ہیں جس ہستی پاک کے حوالے سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین ہستی ہیں۔ آپ کے علم کا مرتبہ یہ ہے کہ 2000 سے زائد احادیث ان سے منسوب ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ درس دیا کرتی تھی، اور حج کے موقع پہ بھی مکہ مکرمہ جایا کرتی تھی، لوگ ان سے باتیں کرتے تھے، مسائل کا حل جانتے تھے۔ ہم بات کریں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی۔ بالکل، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم بات کر رہے ہیں، ان کی فضیلت کے حوالے سے، اور 2000 سے زائد احادیث جیسا کہ ہم نے کہا آپ سے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ اور تعلیم نسواں کی بات کریں،
اس کی موجودہ وقت میں کتنی ضرورت ہے، پھر بطور زوجہ ان کا کیا کردار رہا، اور آپ کو جو سب سے بڑی اہلیت اور فضیلت حاصل ہے کہ آپ محبوب خدا ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو محبوب جانا، اور کم عمری کی وجہ سے بھی، اور پھر بعد میں جس طریقے سے آپ نے بطور زوجہ اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سنت محمدیہ کے ساتھ اپنا رویہ ڈھالا، وہ بھی ایک رہتی دنیا تک اور رہتی کائنات تک مثال ہے۔ اس سبھی پہ ہم بات کریں گے، اللہ ہمیں صحیح سے یہ بھی ذکر پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے مہمانان ہمارے ساتھ ایز یوزول موجود ہیں اور ان سے ہم بات بھی کرتے ہیں۔ پروفیسر ناصر محمود صاحب، آپ ان کے تبصرے سنتے ہیں مختلف چینلز پہ بھی اور ہمارے ساتھ تو سنتے ہی ہیں۔ ناصر بھائی، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ روزہ ٹھیک جا رہا ہے آج آپ کا؟ ماشاءاللہ آدھے سے زیادہ تو مکمل ہو گئے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ فہد بھائی بھی آ چکے ہیں جی، فہد کاظمی صاحب آج تھوڑے سے لیٹ ہیں، لگتا ہے ٹریفک نے آج پھر فہد بھائی کو جکڑ لیا، لیکن پہنچ گئے وقت پہ آپ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ How was your day? ٹھیک گزرا؟ جی الحمدللہ، چلے ماشاءاللہ، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ۔ اینڈ دین جی کچن ایز احمد حماد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احمد السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ دونوں سنائیں گے؟ بالکل ٹھیک۔ احمد کیا بنا رہے ہیں آج؟ آج ہم ڈھاکا چکن بنا رہے ہیں۔ ڈھاکا چکن؟ جی، یہ نام کی بتائیں ذرا۔ یہ بیسکلی بنگلہ دیش سے جو ہے وہ آیا ہوا ہے، اور ادھر کا ایک جو کیپٹل ہے ڈھاکا، ادھر کا یہ جو چکن ہے، اور رمضانوں کے اندر یہ اسپیشلی ادھر کافی زیادہ بنایا جاتا ہے۔ اچھا، سرسوں کے تیل میں فرائی ہوتا ہے، سرسوں کے تیل؟ سرسوں کے تیل میں۔ تو احمد سرسوں کے تیل کی تو بہت اسمیل سی ہوتی ہے۔ دیکھیں، ہم سرسوں کے تیل کو شروع میں نا اس کو کہتے ہیں پھاڑنا، اچھا اس ٹھیک کی ہے، اسمیل جو ہے وہ کم کرتے ہیں، یا اس کے بعد اس کو فرائی کیا جاتا ہے۔ تو آپ وہ طریقہ بھی بتائیں گے کہ کیسے کرتے ہیں؟ میں وہ بھی طریقہ آپ کو بتاؤں گا۔ زبردست، ٹھیک ہے، آپ اپنے کام کو جاری رکھیں، ہم آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں اور اپنے ٹاپک کی جانب جاتے ہیں۔ امیر المومنین سیدہ عائشہ کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ پروفیسر صاحب، آپ گفتگو کا آغاز کریں، جس طرح سے بھی ہم نے انٹرو ایک معمولی سا دیا ہے، لیکن چاہیں گے شخصیت کا احاطہ کریں ان کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی عظیم شخصیت، اور اتنا ہی آپ نے اچھا تعارف کروایا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کا ادب و احترام، ان کا تعلق اور نسبت نصیب فرمائے۔ سیدہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب اور پیاری زوجہ ہیں، اور امہات المؤمنین میں اپنا ایک مقام رکھتی ہیں۔ جب محدثین لکھتے ہیں اور درجہ بندی کرتے ہیں تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بعد ان کو مرتبے میں اوپر رکھتے ہیں، تمام ازواج مطہرات پر بھی، امہات المؤمنین میں۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا، آقا علیہ السلام سے لرن کیا، اس علم کو پھر آگے پھیلایا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی بھی آقا علیہ السلام کے لیے اللہ نے ازواج چنی، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، یہ حضور علیہ السلام کا اپنا انتخاب نہیں تھا، رب ذوالجلال کا انتخاب تھا۔ اللہ اکبر۔ اگر ساروں کے بارے میں فردن روایات ہمیں نہ ملیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو یہ کلیئر کٹ موجود ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اریتک مرتین فی المنام، مجھے 2 بار تم خواب میں دکھائی گئی کہ تم ریشم کے کپڑے میں لپیٹی ہوئی تھی، میں نے کپڑا ہٹا کے دیکھا تو تم تھی، تو میں نے کہا اگر میرے رب نے اور مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی زوجہ ہے، تو چونکہ نبی کا خواب تو وہی ہوتی ہے، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے سوچا اگر میرے رب نے یہ فیصلہ کر لیا تو یہ ہو کر رہے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا انتخاب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ آقا علیہ السلام نے جب عام لوگوں کو شادی کے لیے حکم دیا کہ کس طرح کی خواتین کو پسند کرنا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربعۃ، آقا نے فرمایا کہ عورت کے ساتھ نکاح 4 وجوہات کی وجہ سے کیا جاتا ہے، 4 خصائل ہوتی ہیں اس کی، لجمالہا ولذاتہا ولمالہا، اس کا حسن، اس کا مال، اس کا نسب، ولدینہا، اور اس کے دین کی وجہ سے آقا نے فرمایا فاظفر بذات الدین، دین کے پہلو کو پہلے رکھا کرو، اس کو اہمیت دیا کرو۔ جب آقا علیہ السلام عام لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں تو یقیناً حضور علیہ السلام کے اپنے نکاح تو اسی وجوہات پر ہوئے ہوں گے، تو آقا علیہ السلام کی جتنی ازواج سے نکاح ہوئے حضور کی شادی میں آئیں، یہ یقیناً اللہ کا انتخاب تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اختیار دیا، اس کو آیت ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، جس کو آپ رکھنا چاہیں اپنی ازواج میں سے رکھ لیں، جس سے آپ چھوڑنا چاہیں چھوڑ دیں، کوئی گناہ نہیں آپ پر۔ میرے آقا نے کسی کو نہیں چھوڑا، اور وجہ کیا تھی؟ اللہ نے ان ازواج کو بھی ایک بار اختیار دیا تھا، یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات سے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج سے کہ اے نبی کی بیویوں، اے میرے پیارے حبیب، ان سے کہہ دیں چونکہ مال گھر میں نہیں آتا، دنیا گھر میں نہیں آتی، اب باقی گھروں میں ذرا پیسے کی تھوڑی بہت ریل پیل شروع ہو گئی تھی فتح مکہ کے قریب آ کر، اور حالات بہتر ہو گئے تھے، تو حضور علیہ السلام کے اپنے گھر کے وہی حالات تھے
बिल्कुल चूल्हा 2-2 महीने नहीं जलता था, घर में पकने की चीज़। तो अज़वाज ने कहा या रसूलल्लाह कोई थोड़ी सी सहूलत हमारे घरों में हो जाए। वो ज़ाहिर है बीवियाँ हैं तो बीवी ने तो अपने शोहर से ही कहना है, और किससे बात करेगी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम अब दुनिया को तलाक दे चुके हैं, रसूलुल्लाह नहीं चाहते दुनिया मेरे घर में आए। अज़वाज का मुतालबा भी जायज़ और दुरुस्त, और जिस शख्सियत से कर रही हैं उसी से कर सकती हैं, और है ही कोई नहीं। तो आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया, ए नबी आप अपनी बीवियों से कह दें, कुल अज़वाजिका, अपनी बीवियों से कहें, अगर इन कुन्तुन्ना तुरिदनल हयात दुनिया व ज़ीनतहा फ़तआलैन, अगर तुम दुनिया और उसकी जीनत चाहती हो तो आओ, उमत्तिकुन्ना व उसर्रिहुकुन्ना सराहन जमीला, मैं तुम्हें दुनिया दूंगा लेकिन फिर अपने साथ नहीं रखूंगा। बस दो ही है, या दुनिया ले लो या फिर मेरे साथ ना रहो। अज़वाज में से किसी एक ने भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जुदाई को इख्तियार नहीं किया। जब तमाम, और सबसे पहले जवाब देने वाली सैयदा आयशा सिद्दीक़ा थी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम से कहा, या रसूलल्लाह कोई चीज़ दुनिया की ऐसी नहीं है कि जिसे आपके कुर्ब पर तरजीह दी जा सके, और आपका साथ है तो सब कुछ है, और आपका साथ नहीं तो कुछ। सुभान अल्लाह। और ऐसी कई मिसालें हैं जब ये तस्करा छिड़ी गया। फहद भाई आप इस पे ज़रा रोशनी डालिए। और दूसरा ये कि ये जो अहादीस को रकम करना और फिर आगे पहुंचाना, ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बहुत ही खूबी के साथ निभाया, और उनकी वजह से एक राह मुतय्यन हो गई हमारे लिए ज़िंदगी में। वो जिसे कहना चाहिए कि कोई तिश्ना लबी नहीं रही इस्लाम को लेकर, बहुत सारे मौज़ूआत मामलात ऐसे वाज़े हुए, ख़ास तौर पर अज़वाज को लेकर। इस पर भी ज़रा रोशनी डालिए। थैंक्स अ लॉट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैं आगाज़ में कहूँगा जो बात हम रोज़ करते हैं वो आज भी मैं करूँगा। आगाज़ में हमारी मिल्लत इस्लामिया को सेक्टेरियनिज़म ने बहुत नुकसान पहुँचाया, और वो हीरोज़ जो कलेक्टिवली जिनके साथ हमने जुड़ना है, हमने उनको भी तकसीम किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह ये आपका प्लेटफॉर्म है कि हम अपने बाइसेस से उठकर अल्हम्दुलिल्लाह एक यूनिवर्सल लेवल के ऊपर कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। और ये उसका सबूत है कि कल हमने अल्हम्दुलिल्लाह इमाम हसन अलैहिस्सलाम को अपनी एक कोशिश की कि ट्रिब्यूट दें, खिराज तहसीन दें, और आज हम अम्मा आयशा का तस्करा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और वो जैसे प्रोफेसर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, हमारे तो बाइसेस है भी नहीं, लेकिन मैं जनरल मैंने एक बात की कि बाज़ औक़ात लोग जब नैरेटिव को बिल्ड करते हैं तो वो अंडरस्टैंड नहीं करते चीज़ों को। जो आपने उनकी हदीस ट्रांसमिशन की बात की, उससे पहले मैं एक बात ज़रूर यहाँ पे अर्ज़ करूँ कि बीबी आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो हस्ती पाक हैं कि कुरान इनकी ऐलान बिरात जो है वो खुद पब्लिकली डिक्लेयर करता है। सुभान अल्लाह। कुरान में इनके लिए वो आयात उतरी। आपका ताल्लुक किसी भी फ़िरके से है, अल्लाह का कुरान आज तक वही हतमी और कतई, और वो आयात इसके अंदर मौजूद है, बेशक, जिसमें बीबी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा का दिफा रब्बुल इज़्ज़त ने खुद किया। तो ये बात को जहन में एब्जॉर्ब करके हमें बीबी आयशा सिद्दीक़ा के ऊपर कॉन्वर्सेशन करनी चाहिए कि कुरान जो है उनके पीछे खड़ा है। तकाबुल का क्या कॉन्सेप्ट है? क्योंकि हमारे उलमा, हमारे अकाबरीन भी बाज़ औक़ात बड़े बड़े उलमा को मैं जब हम सुनते हैं तो वो भी ये कहते नजर आते हैं कि हमारे नजदीक वो इधर है, फलां इधर है। ये तकाबुल का ये तस्करा है ही क्यों? एब्सोल्युटली बेसलेस, एब्सोल्युटली बेसलेस। एक चीज मैं इसमें जरूर कहूंगा, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस आ जाए वो हतमी और कतई है, उसमें अगर आका कोई तायुन फरमाए या ताइन हो जाए वो हतमी और कतई है। उम्मत के किसी स्कॉलर को रब्बुल इज़्ज़त ने इख्तियार नहीं दिया कि वो तकड़ी लेके तराजू लेके तोलना शुरू करे। ये बिल्कुल फ्लॉड अप्रोच है। और मैं एक आगाज में एक और बात यहाँ पे, इमाम अहमद बिन हम्बल इसको लेके आए हैं, हजरत अली उल मुर्तज़ा करमल्लाह वजहू और अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद हैं। किसी शख्स ने बीबी के बारे में मयार से कोई अदना बात की, दोनों हस्तियां मौजूद है, और हजरत अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या फरमाया, इमाम अहमद बिन हम्बल लेके आए इसको, गेट लॉस्ट, तुम धुतकारे हुए हो, तुम ये ऐसा जुमला कैसे अदा कर सकते हो? बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दुनिया और आखिरत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा है। सुभान अल्लाह। ये अकीदा अली उल मुर्तज़ा है, ये अकीदा अम्मार इब्न यासिर है। ये मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ, और फिरका वारियत के जो हमने वो जो एक सल्तनतें यहाँ पे खड़ी की हुई हैं उनको ये हदीस और ये तुर्क जो है, ये असर जो है, ये उन्हें डिमोलिश कर रहा है। इसको हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। अल्लाह की एक हिकमत थी जो मुझे एक नजर आई कि बीबी बड़ी यंग एज में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपका निकाह हुआ, तो ये यंग एज थी ही इसलिए कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा फरमाना था, तो एक ऐसी शख्सियत हो जो दीन की तरवीज के लिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको फिर एक लंबी तवील उम्र अता की, तो उनका यंग होना, जैसे बीबी खदीजातुल कुबरा तो पर्दा फरमा गई,
دیگر ازواج بھی پردہ فرما گئیں، لیکن مطلب بی بی عائشہ صدیقہ، بی بی ام سلمہ، یہ وہ ہستیاں تھیں جن کو طویل عمر بھی ملی. تو وہ جو ان کا ینگ ہونا ہے اور ینگ ایج میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑنا ہے، وہ اس نے ہیلپ کیا ٹرانسمیشن آف حدیث میں. اور ان کا جو آپس کا تعلق ہے ہسبینڈ اور وائف کا بڑا خوبصورت ہے. میں ایک اس میں روایت کوئکلی پڑھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لاڈ اٹھا رہے ہیں. ایک دفعہ دوڑ کا مقابلہ آپس میں ایک ایٹ اے لائٹر نوٹ ہوا تو بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ I was young, I was agile. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایج بظاہر زیادہ تھی. تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آگے نکل گئی اور وہ خوش بھی ہوئی اس پہ. اور پھر وہ 1 سال 2 سال معاملہ گزر گیا. بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اس وقت میں نے ویٹ گین کر لیا تھا, میں اتنی ایجائل اور کوئک نہیں تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ آج بھی دوڑ کا وہ معاملہ کوئی. دونوں نے پھر دوڑ لگائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے. اور انہوں نے پھر ایٹ اے لائٹر نوٹ کہا عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہے وہ جب پچھلے سال آپ جیتی. تو یہ بھی ایک ہیومن انٹریکشن ہے, یہ بانڈنگ ہے. اور اس پہ تو ہم نے بات کرنی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ تعلیم نسواں کے حوالے سے بھی ہم اپنے اس ٹاپک کے اندر ضرور ڈسکشن کریں گے. ہمیں بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے خیر رمضان. خیر رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. ان کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو تعلق تھا, جس طرح کی بانڈنگ تھی, اس کو تو ہم نے ڈسکس کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پروفیسر صاحب اس ساری شخصیت کے بعد جن شخصیت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اس میں تعلیم کو لے کر بھی ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اور خواتین کی تعلیم, ان کا اویئر ہونا, جس طرح سے ہم ابھی احادیث کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے کہ ان کی ٹرانسمیشن ہو, دیگر معاملات ہو, اس میں خواتین کی تعلیم پہ بھی کہیں نہ کہیں اس کا اینگل جڑتا ہے. بہت خوبصورت آپ نے پوائنٹ لیا, کیونکہ سیدہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی براہ راست شاگرد تھیں. آقا علیہ السلام سے گھر میں بھی سیکھتی تھیں, سیکھتی رہتی تھیں. پھر جب آقا علیہ السلام خواتین کے لیے اسپیشل آقا علیہ السلام نے ہفتے میں ایک دن رکھا ہوا تھا, حضور علیہ السلام جا کے ان کو سکھاتے تھے, لیکچر اور سرمن دیتے تھے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں لیکچر دیتے تب بھی ام المؤمنین کا حجرہ مسجد نبوی کے بالکل ساتھ. آج بھی جو لوگ جاتے ہیں ریاض الجنہ میں تو ساتھ جس حجرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی آرام فرمایا وہ حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ کا ہی تھا. تو آپ اپنے دروازے کے ساتھ, جو دروازہ کبھی بند ہی نہیں ہوا تھا, چھت ایسی کہ ہاتھ اوپر کرے تو چھت کو ہاتھ لگے, کپڑا لٹکا ہوا تھا, ایک کواڑ تھا لیکن کبھی زندگی میں بند نہیں ہوا تھا. حدیث پاک کے الفاظ سنا رہا ہوں آپ کو. وہاں بیٹھ کے بھی حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو ہی سنتی تھیں, اور اتنا زیادہ سن لیا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, امام ترمذی اس حدیث کو لائے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر جب بھی کبھی کسی حدیث کا مسئلہ بن جاتا ہم حضرت عائشہ کے پاس جاتے سوال کرنے کے لیے, اور جب بھی کبھی سوال کیا اِلَّا وَجَدْنَا عِنْدَهَا مِنْهُ عِلْمًا, کہ اس حدیث کا صحیح علم ہمیں انہی کے پاس سے ملا. ایک بار کسی نے آ کر حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں, حدیث روایت کر رہے ہیں, اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ عورت اور گھوڑے میں نحوست ہے, عورت اور رسول اللہ کی حدیث روایت کر رہے ہیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائیں اور ہنسی. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ نے بات پوری نہیں سنی, میں نے رسول اللہ سے سنی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ یہود یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ گھوڑے اور عورت میں نحوست ہے, حالانکہ ایسی بات نہیں, اللہ نے ان دونوں چیزوں میں برکت رکھی ہے. تو فوراً درستگی کر دی. ہمیشہ ایسا ہوتا تھا کہ آپ کے پاس آ کر درست, اور حضور علیہ السلام ان کی باتیں بہت غور سے سنا کرتے تھے. آقا علیہ السلام کو بیٹھ کے سناتی باتیں, اور کئی بار ایک قصہ سناتی ہیں, حضور علیہ السلام سنتے. آقا علیہ السلام ٹرین کر رہے تھے ان کو. رسول اللہ جانتے تھے کہ میرے جانے کے بعد اس نے لوگوں کو باتیں سنانی ہیں. ایک بار طویل قصہ سنایا انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, اور آقا علیہ السلام ان سے قصہ سننے لگے. کہتے ہیں یا رسول اللہ 11 عورتیں بیٹھیں, اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے خاوند کی ہر صحیح بات یہاں کہہ دیں گی. لمبی ہے حدیث پاک, بہت لمبی ہے. ہر عورت نے اپنے خاوند کی ساری باتیں کھول کے رکھ دیں. وہ حدیث پڑھنے والی ہے ویسے, جس کسی کو کوئی اشارہ ہو جائے. امام احمد بن حنبل نے بھی اس حدیث کو لایا ہوا ہے. تو آخر میں کہتے ہیں ایک ام زرع ایک عورت تھی, وہ بولی, اس نے کہا جی ابو زرع جیسا بندہ میں نے نہیں دیکھا, وہ میرا اس طرح خیال رکھتا ہے, اس طرح خیال, اس کا اخلاق ایسا ہے, اس کا رہنا ایسا ہے, اس کا سونا ایسا ہے. تعریفیں کی, اور اس کے ساتھ بہت محبت کا اظہار کیا, اور اس کی اپنے لیے محبت کا بیان کیا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ
वैसे जो उम्मे ज़रा के साथ अबू ज़रा मोहब्बत रखते हैं वैसे ही मैं तुमसे नहीं अल्लाह करता, अकबर। या रसूलुल्लाह आप तो वाकई ऐसे ही करते हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जो कुछ इल्म सिखाया उसकी बुनियाद पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनके साथ ताल्लुक ताल्लुक था, और वो फिर उसके जरिए मैंने कहा कि उम्मत मुस्लिमा का बड़ा फायदा हुआ, उसमें कोई शक नहीं है। इससे एक बात और भी फायदा ही पता लगती है कि टू बी ए गुड स्पीकर यू आर सपोज्ड टू बी ए वेरी गुड लिसनर। आपको पहले सुनना है, उसके बाद आप अच्छा बोल सकते हैं। ये जो रिवायात हैं इसके हवाले से भी, और दूसरा इसके साथ जो एक ताल्लुक है शौहर का और बीवी का, ये सबसे अच्छी मिसालें हमें ये ऐसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जोड़े बनाए, पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में, फिर हज़रत अली और बीवी फातिमा की सूरत में। तो ख़ास तौर पे स्पेसिफिकली चूंकि हम अम्मी आयशा के बारे में बात करें तो ज़रा उस पर आप दलील दीजिए। अच्छा, एक जैसे अभी नॉलेज की बात प्रोफेसर साहब कर रहे थे, बड़ा मुश्किल होता है कि बाज़ औक़ात कोई चीज़ आपको नहीं पता होती और ये मानना कि यार इस मौजू पे मुझे नहीं पता। जो स्कॉलर्स होते हैं ना आमतौर पे उनकी ईगोज होती हैं, वो ये प्रिटेंड करते हैं कि मुझे हर चीज का पता है, और जब कहीं वो फंस जाते हैं तो फिर बात को गोलमोल करते हैं। पर ये नहीं कहते कि मुझे, आम इंसानों में भी है, आम इंसानों में भी है, लेकिन स्कॉलर्स की ईगोज शायद ज्यादा बड़ी होती है। मेरी ऑब्जर्वेशन ये रही है यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में वैसे उलमा इकराम से कि अगर वो किसी जगह पे फंस जाए तो कभी ये नहीं कहेंगे कि मैं पढ़ के बताता हूँ, मैं चेक करता हूँ, मैं किसी से पूछ लेता हूँ। वो कोई बात को गोलमोल करेंगे और आपको ही ऐसे टालेंगे कि आपको लगेगा कि उन्होंने आपको सवाल का जवाब दे दिया। बीबी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जैसे अभी जनाब अबू मूसा अशरी की ये तुर्क यहाँ पे रिवायत हुआ, अगर कोई बात नहीं पता तो ये भी फरमा देती थी कि इस बात का फलाने से पूछ लो। जिसकी एक मिसाल है, किसी ने मौज़ों पर मसे के बारे में पूछा कि मौज़ों के ऊपर मसा है तो इसके मसाइल क्या है, ठीक है, तो फरमाया ये बात तुम अली उल मुर्तजा से पूछो, क्योंकि वो सफर व हजर में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज्यादा होते थे। वाह वाह, यानी उस तरह मोड़ दिया, और ये बहुत बड़ी बात है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत थी, ऐसी शानदार मोहब्बत थी, और जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमालियाती सरबतें इनको नसीब हुई, वो जो तजल्लियात नसीब हुई, फरमाया कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा इतना रोशन है कि अगर अंधेरी रात हो तो आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उसमें सुई भी तलाश कर लेती है। पूरी हदीस की रवायत है, मैंने इशारतन यहाँ पे बात की है। यानी वो जमाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो ब्यूटी है। एक दफ़ा मदीना शरीफ के अंदर, ये भी हमारे व्यूअर्स के लिए दिलचस्पी का बायस होगा कि दीन ड्राई नहीं है, दीन में फेस्टिविटी भी है, दीन में एंजॉयमेंट का पहलू भी है। भी सुनाया आपने। मुझे एक ब्रेक लेनी है, मैं ब्रेक के बाद आऊंगा, जरा इसको दोबारा ये वाकया हम दोबारा जरूर सुनेंगे। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा लिंक करते हैं। खैर रमज़ान में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे उम्मत बीबी आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से, और हमने तस्करा किया उनका और उनके ज़ात के मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर हमने बात की। बिल्कुल प्रोग्राम में इंतहाई कम वक्त बाकी है, मैं चाहता हूँ कि प्रोफेसर नासिर भाई इसको समअप करें और फिर हम अपने शेफ़ की जानिब जाएँ। वक्त कम है, सो मैं चाहता हूँ मैं आपकी ज़िंदगी का एक पैगाम जो बहुत ज़रूरी देना चाहता हूँ। हमारी अपनी माएँ, बहनें, बेटियाँ जहाँ तक हमें सुन रही हैं, एक बहुत बड़ा मामला है, जब बाज़ औक़ात कोई ख़वातीन शादी के बाद औलाद नहीं होती तो दुखी होती हैं, परेशान होती हैं, कई इसी वजह से टेंशन ले जाती हैं, इस वजह से बीमार हो जाती हैं। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की ज़िंदगी में भी ये वाक़या आया, क्योंकि औलाद उनकी होना अल्लाह की हिकमत में नहीं थी, अल्लाह की हिकमत में नहीं थी, वरना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपने प्यारे हबीब से आगे कौन था। औलाद देने वाला वो था, और इनको मिलती तो क्यों ना मिलती, लेकिन अल्लाह ताला ने किसी हिकमत के तहत नहीं दी। और वो भी मेरा ज़ाती तौर पर एक टेक ले लें, शाह जी बैठे हैं तायद करेंगे, फिर कवारियत ज़्यादा बढ़ जानी थी, किसी ने इस ज़ौजा की औलाद को, किसी ने उस ज़ौजा की। अल्लाह ताला ने हिकमत, शायद अल्लाह की मंतक, ये कई हिकमतों में से एक भी होगी। लेकिन आपने हुज़ूर अलैहि सलाम के सामने कहते थे कि आका मेरे यहाँ औलाद नहीं, तो मैं कुन्नियत क्या रखूँ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारा जो अस्मा बिन्त अबी बकर, तुम्हारा भांजा अब्दुल्ला है ना, उम्मे अब्दुल्ला तुम अपनी कुन्नियत रख लो। तो जितनी ख्वातीन है, अगर उनके भांजे भतीजे हैं तो उनको अपनी औलाद समझें, अपने आप को बीमार ना करें। कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है कि हमने 2 बच्चे छोड़ के ही मरना है। अगर अल्लाह ताला ने आपके नसीब में नहीं किए और नहीं है तो इत्मीनान के साथ ज़िंदगी गुजारें, अल्लाह को राज़ी रखें। बहुत खूबसूरत नुक्ता है जिस पे आपने इख्तिताम किया। आप दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया, फहद भाई, प्रोफेसर साहब, थैंक यू वेरी मच। और इसी पॉइंट पे, इससे पहले कि हम इस सेगमेंट में ब्रेक लें, हमने जल्दी से किचन अपडेट ले लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, किचन अपडेट ले लेते हैं। उसके लिए अहमद हमाद हमारे साथ मौजूद है। अहमद, कहाँ तक पहुँचे हैं किचन के मामलात? ऑलमोस्ट वी आर डन। ओके, और हमारा चिकन रेडी हो गया है। इसको हमने फ्राई भी कर लिया है और एयर फ्राई भी कर लिया है। ठीक है। ये जैसे कि
रेसिपी भी अहमद साथ साथ बता दें हमें। जी जी, मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा एयर फ्राइड हुआ हुआ चिकन है, ओके। और ये हमारा जो है वो फ्राइड चिकन है, जिसको हमने सरसों के तेल में एंड ऑयल में मिक्स करके जो है वो फ्राई किया है। अहमद ज़्यादा टेस्टी कौन सा है यार, ये बताओ। ज़्यादा हेल्दी कौन सा, ये पूछें। चलो दोनों बताएं, टेस्टी और हेल्दी दोनों। देखें, एयर फ्राइड जो है वो हेल्दी होता है, Okay. क्योंकि इसमें ऑयल का इस्तेमाल हमने 1 से 1.5 टेबल स्पून के दरमियान किया। ठीक है। वो फ्राई हुआ हुआ, दूसरा चिकन जो है वो फ्राई हुआ हुआ। ठीक है। अच्छा, इसकी रेसिपी बड़ी जो है वो आसानी से जो आप बना सकते हैं वो ये है कि सेम पकौड़ों वाला मसाला होता है, लेकिन उसके अंदर जो हम इस्तेमाल करते हैं वो पाउडर में इस्तेमाल करते हैं। अदरक, लहसुन, इसी के साथ सूखा धनिया, ज़ीरा, लाल मिर्चें और ग्रीन चिली। ठीक है, ये एक मिक्सर बना के 1 कप मैदा और 1 कप जो है बेसन, उसका मिक्सर बना के हम चिकन को जो है उसके अंदर डिप कर देते हैं। ठीक है। और कम से कम 30 से 40 मिनट हम उसको डिप रहने देंगे। इसके बाद हम इसमें दही ऐड करेंगे। दही हम इसलिए ऐड करेंगे ताकि वो हमारे जो चिकन है उसको जूसी रखेगा। एंडिंग के ऊपर, इसके ऊपर जो है वो हमने सेसमी सीड्स जो है तिल, वो हम लगा के इसको फ्राई करेंगे सरसों के तेल में। ठीक है। अब सरसों के तेल में एक होता है कि स्मेल बहुत आती है, या क्या तरीका है उसका। शुरू में जब इसको हम वो करेंगे फ्राई, तो एक कोई भी बोटी का पीस लेके हमने चिकन जो गरम तेल होगा, ठीक है, उसके अंदर हमने डाल देना है और उसको फ्राई कर लेना 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि जितनी भी कड़वाहट है वो चिकन में एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक हो गया। जो पहला हम चिकन करेंगे या कोई भी चीज़ आप फ्राई कर लें, उसको साइड पर रख दें। उसके बाद जो हम फ्राइंग करेंगे, वो जो फ्राइंग है वो बिल्कुल परफेक्ट होगी और उसमें से स्मेल भी नहीं आएगी और प्रॉब्लम भी नहीं होगी। कुछ लोग ऐसे गरम तेल के अंदर पानी भी डाल देते हैं, लेकिन वो बड़ा हार्मफुल है। वो तेल जो है एकदम से उछलता है और वो जो है ना वो अजीब सा डिजास्टर क्रिएट कर देता है। ठीक है। तो ये आसान तरीका है। और जो हमने इसका जो ऊपर वाला जो क्रस्ट है वो थोड़ी सी क्रिस्पी रखनी है। अंदर वाला जो एरिया है वो हमने, या इंटरनल फिलिंग है जो इसकी गोश्त की, वो जूसी होनी चाहिए। ठीक है। ये ढाका चिकन की जो है वो पहचान है। ओके, ठीक है। सो इट्स रेडी। एक फाइनल शॉट दिखाएं जी हमें। रेसिपी कार्ड हमने आपको दिखा दिया और ये फाइनल शॉट एक देख लें, हमारी रेसिपी जो रेडी है। दिस इज ढाका चिकन फॉर यू, एयर फ्राइड एंड ऑयल फ्राइड दोनों। आज हमने जो ढाका चिकन है वो डालडा के अंदर बनाया। डालडा भी मैंने इसमें यूज किया और सरसों का तेल भी, मेनली सरसों का तेल, लेकिन जो एयर फ्राई आपने किया उसमें आपने डालडा को भी आपने इस्तेमाल और किया। पिछले 80 सालों से जो है वो डालडा हमारे साथ जो है वो घर घर तक माओं का इत्तेफाक है, और जहां ममता वहां डालडा। जहां ममता वहां डालडा। चलें जी, उम्मीद है आप बनाएंगे तो आपको पसंद आएगा। हमने क्विक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। कीप वॉचिंग खैर रमजान। रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए अब आपकी मुलाकात काफ़ी दिनों के बाद हम एक यूजुअली तो एक्सप्रेसो हीरो से करवाते हैं, आज खैर रमज़ान हीरो से आपकी मुलाकात करवाते हैं या रमज़ान हीरो से करवाते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं भाई जो बहुत कमाल का काम करें, ख़ासतौर पे नौजवान। आपको याद है हमने आपकी मुलाकात एक्सप्रेसो के अंदर एक ऐसे नौजवान से कराई थी जो चाय के होटल पर काम करते थे, फिर वो किक बॉक्सिंग में उन्होंने बड़ा अपना नाम कमाया था। एक दफ़ा फिर हम आज उनका जिक्र करने जा रहे हैं। दूसरी बार उन्होंने वर्ल्ड टाइटल अपने नाम किया है। आगा कलीम इनका नाम है। थाईलैंड के शहर बैंकॉक में होने वाली इस आलमी चैंपियनशिप में बॉक्सर आगा कलीम साहब ने लाइट फ्लाई वेट का इवेंट अपने नाम किया। 23 साल इनकी उम्र है, 51 किलोग्राम कैटेगरी है और इसमें भी इन्होंने कामयाबी के झंडे अब गाड़े हैं। पहली फाइट में उन्होंने किर्गिस्तान के 2 मरतबा के आलमी चैंपियन को पॉइंट्स के ऊपर शिकस्त दी और दूसरे मुकाबले में नेपाली खिलाड़ी थे, उनको सिर्फ 50 सेकंड में इन्होंने हरा के बाहर किया। इस चैंपियनशिप में 40 ममालिक से ताल्लुक रखने वाले 500 से ज़ायद खिलाड़ी शरीक हुए। ये कामयाबी कैसे मुमकिन हुई और चाय बेचने से लेकर अब तक ये नौजवान कैसे कामयाबियों का सफर तय किए जा रहा है, इसी पे हमने बात करनी है। आगा कलीम हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आगा, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अरे बहुत बहुत मुबारक हो। हमें दोबारा से बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आप हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने और डेफिनेटली ये टाइटल आपने जब दोबारा जीता है तो हमारे लिए भी बड़ी फ़ख्र की बात है। हम आपके साथ ज़रूर चाहेंगे कि आप अपनी इस फतह को, अपनी इस जीत को हमारे देखने वालों के साथ शेयर करें। और इसके साथ साथ हमें ये भी मालूम हुआ कि इस टूर पे जाने से पहले आपके कोच आपके साथ नहीं जा सके और आपको बिल्कुल एक अननोन कोच ने जो है ट्रेन किया और वहाँ पे हेल्प की। इस हवाले से भी बताइएगा। तो सर मैं कहना चाहता हूँ, मतलब इवेंट के लिए मेरे उस्ताद ने भी वीजा लगाया, ठीक है, मेरे 3-4 बंदे उन्होंने वीजा लगाया, मगर हमारे पास टिकट के पैसे नहीं थे, तो हम हमारे सारे कोच भी रह गए, हमारे 3-4 प्लेयर वो भी रह गए। तो अब जब मैं वहां पर करना,
تو وہاں پر اٹلی کوچ آیا, انہوں نے میری کوچنگ کی اور انہوں نے مجھے جو ہے نا میری ظاہر سی بات مجھے پانی پلایا. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی نشانی ہے ہمارے اسپورٹ کے لیے, ہمارے کے لیے. یار ایک بندہ جو جا رہا ہے پاکستان کو پریزنٹ کر رہے ہیں ورلڈ لیول پر, اس کے ساتھ جو کوچ نہیں ہے. تو سر بڑا افسوس بھی ہوا مجھے, جو ہے نا میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اسپورٹ بورڈ سے, پاکستان اسپورٹ بورڈ سے تمام چیزیں ہمارے ذمہ دار ریکویسٹ کرتا ہوں جو ہمارے آنے والے ایونٹ تھے اس میں کوپریٹ کریں, تاکہ جو ہمارے استاد محترم اقرا خان ٹائیگر ہے وہ ہمارے ساتھ جائے, ہمارا اوپر پڑ جائے. سر آپ یقین کریں جب وہاں پر ٹیم آئی تھی یوکی کی, اس کے پاس 40 پلیئرز تھے, ان کے پاس اپنا کوچ ٹرینر سب کچھ موجود تھا ہر بندے کے پاس. ٹیم آسٹریلیا 30 لوگوں مشتمل تھی, ٹیم نیپال 20 لوگوں مشتمل تھی, ٹیم ساؤتھ افریقہ 20 لوگ مشتمل تھی. بس اپنے اپنے کوچ ٹرینرز تھے, ایک میں آغا کلیم جس کے پاس اپنا کوچ تک نہیں تھا. یار یہ بحثیت قوم ہمارے لیے شرم کا مقام ہے کہ آپ پاکستان کا جھنڈا پہن کے وہاں پہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے, اور انڈیا اور دیگر ممالک دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک سنگل پلیئر پاکستان سے آیا ہے جو جیت گیا, ورلڈ چیمپئن جیت گیا, اور دیگر لوگوں کے پاس, دیگر ٹیمز کے پاس 40 لوگ, اور آپ اپنا کوچ تک نہیں لے کے جا سکے. یہ ہماری مقامی حکومتوں کے لیے بھی شرم کا باعث ہے, ہمارے سپورٹس بورڈز کے لیے بھی شرم کا مقام ہے. یہ ہمارے جھنڈے کی شرمندگی ہے, یہ آپ کی شرمندگی نہیں ہے کہ ہم آپ کو سپورٹ نہیں کر پائے. لیکن آپ نے پروف کیا اپنے آپ کو کہ آپ ایک بریلینٹ آدمی ہے, ایک بریلینٹ پلیئر ہے آپ کلیم. الحمدللہ میں جس نے اس ایونٹ کو پوسیبل بنایا میں ان کا بہت شکریہ کروں گا, وہ ایمن اینڈ فیصل, سر کریم احمد کارساز اور سر علی گیلانی نے. سر آپ یقین کریں سر سلیم احمد کارساز نے مجھے خود اپروچ کیا کہ بھائی آپ کے نیکسٹ ایونٹ کب آ رہے ہیں, آپ کو میں دیکھ رہا ہوں آپ جو ہے نا کبھی یہاں سے مانگ رہے ہوتے ہو. کلیم تھوڑا سا آڈیو اپنی کلیئر کرو, تھوڑا سا اپنی ڈیوائس کو ہلاؤ تاکہ ہمیں آپ کی آواز صحیح آئے. کس نے آپ کو خود اپروچ کیا, ہم سمجھ نہیں پائے, دوبارہ بولو. سر سلیم احمد کارساز نے مجھے خود اپروچ کیا, انہوں نے مجھے کہا کہ سر آپ کو جو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں سے ہیلپ مانگ رہے ہو, ادھر جا رہے ہیں, آپ کو سپورٹ چاہیے, اسپانسرشپ چاہیے, مجھے بولے. سر ان کو میں نے بولی, انہوں نے مجھے 1 مہینے پہلے ٹکٹ کروایا, میری ہوٹلنگ کروایا, سب کچھ کروایا, اور ان سے میں نے وعدہ کیا سر آپ سپورٹ کریں, انشاءاللہ تعالی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں جب جاؤں گا انشاءاللہ میڈل لے کر آؤں گا. سر انہوں نے مجھے سپورٹ کیا, سر سلیم کارساز نے اور علی گیلانی نے, اور الحمدللہ سر میں نے پرفارم کیا, اور میں نے ورلڈ موئے تھائی چیمپئن شپ کے اندر الحمدللہ 40 ممالک اور 500 پلیئر آئے ہوئے تھے وہاں پر, الحمدللہ وطن کے لیے میں نے گولڈ ہے, اور ساتھ ساتھ الحمدللہ اپنے مسلمان بھائی فلسطین لے رہا. اور الحمدللہ سر آپ یقین کریں تو میں نے ایک بندے سے میں نے پوچھا نا کہ آپ جب یہاں پر آئے تو آپ کا کتنا خرچہ ہوا ہے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے ایک دن پر $10,000 خرچہ ہوا ہے. تو انہوں نے بولا کہ آپ پر کتنا خرچہ ہوا, تو میں نے کہا یار مجھے جو میرے پاس ایک زائد $2,000 خرچہ ہوا. تو میرے پیسے لگے, بولے آپ ٹریننگ آپ نے کہاں کی ہے, میں نے کہا ٹریننگ ہم نے کی کراچی میں ایک ایریا ہے جہاں پر فیسلٹیز نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. تو وہ لوگ حیران ہو گئے تھے کہ والے یار آپ لوگ اس طرح محنت کرتے ہو, اسٹرگل کرتے ہو. میں نے کہا الحمدللہ محنت کرتے اسٹرگل کرتے, اور ہمیں یقین ہوتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی جیت کر آئیں گے. مشکل حالات کے باوجود آپ آغا جیت کر آئے ہیں آغا کلیم, یہی بہت بڑی بات ہے. اور واقعی جس طرح سے ابھی عمران نے بھی کہا کہ شرمندگی کی بات ہے ہم سب کے لیے کہ ایک پلیئر وہاں پہ گیا ہے اور اتنے مشکل حالات اور اتنی چیلنجنگ سچویشن کے اندر وہاں جا کے اس نے پرفارم کیا ہے. لیکن ہم اپنے پلیٹ فارم سے بار بار یہی ریکویسٹ کرتے بھی ہیں کہ آپ جیسے پلیئرز کو سپورٹ کریں, ادارے سپورٹ کریں, مختلف آرگنائزیشن سپورٹ کریں, حکومت سپورٹ کرے, تاکہ آپ لوگوں کو اس طرح کی مشکلات نہ, اور ایٹ لیسٹ مذاق نہ بنے وہاں جا کے ہمارے پلیئرز کا. ہم ضرور چاہیں گے اپنے اس جو کمپٹیشن ہے اس میں جو اپنی فائٹ ہے اس کے حوالے سے بتائیں, مشکل تھی, آسان تھی, کس طرح سے کن ٹیکنیکس کی بنیاد پہ آپ نے اپنے اوپوننٹ کو ہرایا؟ بالکل, پھر جو میری فائٹ تھی وہ تھی 3 ٹائم کے ورلڈ چیمپئن قزاقستان کے ساتھ. وہ ماشاءاللہ بڑا ہیوی بھی تھا, اس کی ہیڈ اس نے بہت 9 کلو ویٹ کم کیا تھا, وہ 60 سے 51 پہ آیا ہوا تھا نا. تو پہلی فائٹ میرے ساتھ میں کنفیوز ہے کس طرح کو بیٹ کرنا ہے. پھر میرے استاد اقرا ٹائیگر نے مجھے فون کیا کہ آپ نے اس کو بالکل ٹیکنک سے مارنا ہے, ٹیکنک سے مطلب آپ نے اس کو ناک آؤٹ نہیں کرنا کیونکہ یہ آپ سے بڑا ہے, آپ اس کو ناک آؤٹ نہیں کر پاؤ گے. تو ان کی باتیں میرے دماغ میں تھی, میرے ذہن میں تھی. جیسے میں رنگ میں اترا تو میں نے ان سے 3 راؤنڈ میں نے فائٹ کیا, ان کو میں نے پوائنٹ کی بیس کو زیر کیا الحمدللہ. پھر جو میری نیکسٹ فائٹ تھی جو اگلی تھی, میں اس سے جو میری فائٹر تھا نیپالی, اس سے میں نے ہاتھ ملایا, میں نے کہا السلام علیکم. مجھے بولتے ہیں کیا ہو گیا, تو اس طرح بدتمیزی کر رہا تھا. میں نے کہا کچھ نہیں ہوا, کل میں آپ سے ہاتھ ملانے ہیں. بولا ہاتھ نہیں ملاؤ, جاؤ. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب سر وہ جب رنگ میں اترے نا, آپ یقین کریں میرے دماغ میں ایک چیز ناک آؤٹ کرنا ہے, اور وہ رنگ میں اترے میں نے 50 سیکنڈ ٹھہرنے نہیں دیا رنگ میں, الحمدللہ ناک آؤٹ کیا. اور وہی ٹائی چمچی کے اندر الحمدللہ میں نے ایک یہ میڈل اور ایک الحمدللہ یہ بیلٹ میں نے پاکستان کے نام کے الحمدللہ. یہ تو ورلڈ موئے تھائی چیمپئن شپ میں آپ نے نیپالی کی موئے کرا دی ہے. یہ تو آپ جس طرح بتا رہے ہیں بہت ہی زبردست, بہت ہی. دکھائیے میڈلز, ہم دیکھنا چاہیں گے, اور بتائیے کون سے میڈلز ہیں جو آپ نے ون کیے.
सर कोई हमें अलकाए तो हम थोड़ी ना छोड़ेंगे। नहीं नहीं, क्या बात है यार, वी लव यू ब्रदर। जबरदस्त। आप दिखाइए आपने जो विन किया, हम आपकी बेल्ट्स, आपके टाइटल्स आपके देखना चाहते हैं और शर्म भी दिलाना चाहते हैं उन इदारों को जिनकी जिम्मेदारी है आप जैसे प्लेयर्स को सपोर्ट करना। प्लीज दिखाइए। सर आप सिर्फ गिनते जाएंगे, मैं सिर्फ गिनाते जाऊंगा। अरे, क्या बात ये वर्ल्ड मुआय थाई चैंपियनशिप के अंदर मैंने विन किया है, और ये इंटरनेशनल फाइट अगेंस्ट अफगानिस्तान से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह विन किए। वाह। और सर ये मैंने विन किया कजाकिस्तान में अलमाती। सर को मैंने विन किया सिर्फ 20 सेकंड में नॉकआउट किया मैंने। ओके। कजाकिस्तान के शहर अलमाती में 20 सेकंड में नॉकआउट किया। 20 सेकंड में। और वाह। सर ये वर्ल्ड मुआय थाई चैंपियनशिप का अभी का है 2024 का है, और ये सर वर्ल्ड मुआय थाई 2023 का है। ये 23 का है और ये 24 का है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। अल्लाह अकबर। और सर ये 22 का है, ये 22 का है, इसमें एशियन चैंपियनशिप हुई थी। 22 और इसके अलावा सर ये पूरा 3 साल लगातार। पूरा 5 मेरा बड़ा हुआ है, इसके अंदर पूरी मेडल पड़े हुए हैं। और इसके अंदर कितने मेडल्स हैं? ये जो आप शॉपिंग बैग दिखा रहे हैं, ये ओह माय गॉड। सर ये अमेजिंग। आपके मेडल्स, आपकी मेहनत का डेफिनेटली उनको जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि आप इतने सारे मेडल्स के साथ हमारी टीवी स्क्रीन पे हैं। आप हमारे हीरो हैं और हमारी जिम्मेदारी है कि आप जैसे लोगों को हम ज़रूर मेन स्ट्रीम पर लेकर आएँ और लोगों को पता चले कि पाकिस्तान में कितना टैलेंट और मौजूद है। कलीम, हम शर्मिंदा हैं यार, आप जैसे प्लेयर से, आप जैसे चैंपियन से हम शर्मिंदा हैं बहसीयत कौम कि हम क्या सलूक कर रहे हैं आपके साथ। ये सॉरी, मैं कुछ बात करना चाहूंगा प्लीज। जिस तरह मुझे ओवरसीज सपोर्ट किया, मेरे एसएम भाई फ्रॉम यूएसए सर, उन्होंने भी सपोर्ट किया, एशियन चैंपियनशिप के लिए सपोर्ट किया, नेशनल के लिए सपोर्ट किया, इंटरनेशनल के लिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। अगर वो एसएम भाई नहीं होते तो आप यकीन करें आज मैं आपके सामने यहाँ नहीं बैठा होता। और जो मेरे आमिर शेख भाई फ्रॉम यूएसए, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया मेरी डाइट के लिए, मेरे प्रोटीन के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, मेरे ट्रेनिंग कैंप के लिए। आमिर भाई, आप यकीन करें, इन आमिर भाई और एहसन भाई ने मुझे सपोर्ट किया, आज मैं आपके सामने यहाँ मौजूद बैठा हूँ। उन्होंने जो मेरी बुनियाद उन्होंने रखी स्टार्टिंग में, उन्होंने मुझे बड़ा भरोसा किया, मुझ पर बिलीव किया कि यार ये जो है ना ये कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। सर उनसे मैंने वादे किए, मैंने कहा आमिर भाई आप मुझे सपोर्ट करें, प्रमोट करें, मैं आपसे वादा करता हूँ। हमारे आप भी वो हैं और वो जिनका जिक्र आप कर रहे हैं वो भी यकीनी तौर पे खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। जिस तरीके से उन्होंने आपको इस काबिल किया कि आप वहाँ पे जा सकें, कितनी ज़रूरत होती है, कितने वसाइल चाहिए होते हैं आपकी डाइट को लेकर, जिम को लेकर, और मंथली बेसिस कितना खर्चा हो जाता है आपके ऊपर जो कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा? सर आपकी डाइट नहीं, सिर्फ आपकी 1 महीने की डाइट आपका 50,000 का खर्चा आता है 1 महीने डाइट का। सर मैं चाय में काम करता हूँ, सर मेरी तनख्वाह 25,000 रुपए, 25,000 मैं अपने ऊपर लगाऊं, मैं अपने घर को दूं या मैं अपनी डाइट दूं। मेरी जिम की फीस है वो 5,000 रुपए, ठीक है, या फिर 55,000 रुपए आप डाइट वगैरह लोगे, चिकन वगैरह लोगे। सर मेरा महीने का जाता है 70-80,000 रुपए खर्चा, तो मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। मैं मतलब जो घर में बनता है दाल वगैरह वही खाता हूँ, जो कुछ बनता है मैं वही खाता हूँ, चावल से मापे वही खाता हूँ, ठीक से खाता हूँ। तो जाहिर सी बात मेरे पास प्रॉपर वो प्रोटीन के लिए वो चीजें नहीं है जो अक्सर स्पोर्ट्समैन के पास होनी चाहिए, एक प्लेयर के पास। मैं एक तो इस बात पे हैरान हूँ क्या रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद। अब बात करेंगे कुछ दिमागी अमराज के हवाले से कि जब भी कोई शख्स किसी मर्ज से इस जो कह लें मेंटल हेल्थ में उसको कोई ना कोई स्ट्रगल कर रहा होता है तो वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। तो आवाम के जहन में एक ही डर होता है कि अब इसको पागल खाने जाना पड़ेगा, ये ठीक नहीं होगा। इस तरह की मिथ्स जो हैं इसमें कितनी हकीकत है, इस पर आज हम बात करेंगे। और इसके साथ ये भी बात करेंगे कि माहिरीन जो नफ्सियात हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान में मर्दों की निस्बत ख़वातीन में जो ज़हनी अमराज है उनकी शरह में इजाफा हो रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ख़वातीन अपनी निजी और पेशा वराना ज़िंदगी की मसरूफियात के सबब ये जो अपनी मेंटल हेल्थ इशूज़ हैं इनको नज़रअंदाज कर देती हैं। इस पर बात करेंगे। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं कारवान हयात एक इदारा है, उसकी हमारे पास चीफ मेडिकल ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरूसा तालिब। इस इदारे के हवाले से अगर हम आपको थोड़ा सा बता दें तो 1983 में पंजाब कॉलोनी में इसका पहला क्लिनिक जो है वो ऑपरेशनल हुआ था और ये इदारा जो है डॉक्टर जफर कुरैशी की मरहून मिन्नत है और अब तक ये लाखों मरीजों का मुफ्त इलाज कर रहा है जिनको भी इस तरह के इश्यूज होते हैं। डॉक्टर अरूसा हमारे साथ मौजूद जी बिल्कुल। डॉक्टर अरूसा आप कैसी हैं, ठीक ठाक हैं? Unfortunately we've lost your audio. अपनी हैंड्स फ्री करीब We were making sure कि ऑडियो डॉक्टर साहब की आए। डॉक्टर साहब आप सुन पा रही हैं आप हमें?
जी बिल्कुल जी, नाउ वी कैन हियर यू। आप माइक करीब रखेंगी तो हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। एक तो आपने हमें ज्वाइन किया, हम आपके इदारे की तरफ भी आएंगे, उस पर भी हम जरूर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा हमें इस मरज के हवाले से बताइए, ये जो साइकोलॉजिकल इश्यूज इन पर्टिकुलर विद द फीमेल्स इन आवर सोसाइटी, ये क्यों ज्यादा हो रहे हैं, क्यों एग्जिस्ट करते हैं, बुनियादी वजूहात क्या हैं? प्लीज आगाज कीजिएगा। अच्छा, पहले तो हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि ज़हनी अमराज क्या हैं और सेहत में और अनहेल्दी होने में क्या फ़र्क है ना। ठीक है। तो पहले तो सबसे ये समझना है कि पहले हम कहते थे किसी को कोई बीमारी नहीं है तो इसका मतलब ये कि वो सेहतमंद है। ऐसा ही था हमारा जी, ऐसे कॉन्सेप्ट ही, सेहत ऐसे के ही। बारे में कि मुझे तो ब्लड प्रेशर शुगर नहीं है तो मैं सेहतमंद हूँ। WHO ने जो डेफिनेशन अब बना दी है हेल्थ की, वो ये है कि ना सिर्फ आप किसी जिस्मानी या ज़हनी बीमारी से पाक हैं, बल्कि आप अपनी जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं, माशरती जिम्मेदारियां, प्रोफेशनल जिम्मेदारियां, घरेलू जिम्मेदारियां, वो आप बेहतर और ऐसे तरीके से अंजाम दे सकते हैं और उसके अलावा आप अपनी कम्युनिटी को भी फायदा पहुंचा रहे हैं। तो अब आप ये सोचिए कि अगर हेल्थ की डेफिनेशन ये है तो ये 4 चीजें हम हर इंसान अपने ऊपर एप्लीकेट करे और देखे क्या मैं इन चारों चीजों में करेक्ट हूँ, मतलब क्या मैं सब चीजें कर रहा हूँ। तो आई थिंक आपको पता लगेगा बहुत सारे लोग इस हेल्थ के पैरामीटर पे आते ही नहीं है। सो हम बहुत सेल्फ सेंटर्ड, बहुत खुद पसंद, बहुत ही खुद गर्ज लोग हो गए हैं और आई थिंक यही वजह है कि हमारे माशरे में आम लोगों की तरह नहीं बल्कि बहुत ज्यादा तेजी से ज़हनी बीमारियां, ज़हनी तनाव, ज़हनी दबाव बढ़ रहा है बहुत ज्यादा। अच्छा डॉक्टर अरूसा, इसमें हमने अभी रेशो के हवाले से बात कर रहे थे और हमने ये रिपोर्ट भी बताई है कि पाकिस्तान में मर्दों की निस्बत ख़वातीन में ज़हनी अमराज है और सबसे वर्स्ट बात ये है कि ये निगलेक्ट भी हो रहे हैं, नज़रअंदाज भी हो रहे हैं। क्यों? ऐसा ही है और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है मैम, ये पूरी दुनिया में यही स्टैट्स हैं कि इमोशनल जो बीमारियां हैं, कॉमन नफ्सियाती बीमारियां जिसमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी और इस तरह की जो मामूली नफ्सियाती तकालीफ होती हैं वो ख़वातीन में बहुत ज़्यादा हैं और उसके भी बहुत सॉलिड रीजंस हैं। ख़वातीन अपनी ज़िंदगी में 4 अदवार से गुजरती हैं जो कि मेजर लाइफ इवेंट्स होते हैं हमारे, जिसमें सबसे पहला आता है जब एक बच्ची नौजवानी में कदम रखती है तो वो हार्मोनल सर्ज आता है उसके ऊपर। सेकेंड स्टेज जब आती है जब वो बच्ची शादी हो जाती है, उसकी वो कंसीव करती है, जब वो माँ बनने के मरहले में होती है तो फिर एकदम से हार्मोन्स अपना काम करते हैं। तीसरा टाइम आता है जब वो बच्चे की विलादत हो गई होती है उनके पास और उसके बाद ये हार्मोनल चेंजेस अगेन बहुत ज़्यादा आते हैं, वो जो हार्मोन्स बढ़े हुए होते हैं वो एकदम बॉडी से निकलते हैं। तो उस वजह से भी तीसरा दौर ये होता है ख़वातीन में जिसमें वो वल्नरेबल होती हैं मर्दों और आम लोगों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कि उनको ज़हनी अमराज आ जाएंगे। चौथी सिचुएशन ये होती है जब ख़वातीन मेनोपॉज से गुजर रही होती हैं, जब उनके फीमेल हार्मोन्स कम हो रहे होते हैं। तो ये वो 4 अदवार हैं जो हर औरत को आम लोगों के मुकाबले में एज वेल एज मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा वल्नरेबल करते हैं कि उनको कॉमन बीमारियां ज़्यादा होंगी। मतलब अगर 2 औरतों को डिप्रेशन है तो उसके बदले में 1 मर्द को होगा। सेकेंडली, चूंकि ये इमोशनल बीमारियां हैं, इमोशन से रिलेटेड है, तो फीमेल्स हमारे यहाँ मोर एक्सप्रेसिव, वो रो लेती हैं, अपने दिल का हाल खोल देती हैं जल्दी, तो वो डायग्नोज भी हो जाती हैं और उनके लिए इलाज भी हो जाता है और जब एक दफ़ा इलाज हो जाए तो वो बहुत बेहतर भी हो जाती हैं। लेकिन जो इसका फ्लिप पार्ट है और जो सबसे नुकसानदेह चीज़ है वो ये कि हमारे माशरे में ख़वातीन को वो अहमियत नहीं दी जाती, ना उनकी जिस्मानी सेहत को लेकर हम इतना सीरियस होते हैं और ज़हनी सेहत को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं होते। अगर रो रही हैं वो किसी बात पर या उनको बेजा रोना आ रहा है या बहुत परेशान है तो उनको अमूमन टाल दिया जाता है कि ये तुम ऐसे ही परेशान हो, तुम बस छोड़ दो इसको, और अमूमन उनको अटेंशन नहीं दी जाती है। तो ये चंद फैक्टर्स हैं जो कि ख़वातीन को ज़्यादा वल्नरेबल करते हैं। इसमें दूसरी तरफ ख़वातीन का खुद इटसेल्फ बड़ा रोल होता है। आपने जो बताया, जो उम्र रसीदा या उम्र के उस हिस्से में, अगले हिस्से में जब ख़वातीन जाती हैं तो दिस इज अनदर फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन जिसके अंदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लेकिन उसी उम्र की जो ख़वातीन है बाज़ औक़ात खुद से यंग उम्र की ख़वातीन के लिए मसाइल का बायस भी बनती है, जैसे सास बहू के मसाइल हैं, बड़ा कॉमन हमारी सोसाइटी के अंदर। तो समटाइम सास क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर बहू और इस तरह की चीज़ें भी हम देखते हैं। हालांकि उनको एहसास खुद करना चाहिए बिकॉज खुद वो उन 3 मराइल से 4 मराइल से गुजर के आई हैं। इस पर क्या कहेंगी आप? और हमारा देखिए ये तो रिसर्च ने भी साबित किया है कि ऑब्वियसली हर चीज़ की फ़वाइद भी हैं और नुकसानात भी हैं, मगर कराची में एक स्टडी हुई थी, बहुत ही डिटेल्ड नफ्सियात के मामलों को देखा गया था कि वो ख़वातीन जो ख़वातीन फैमिलीज में, कंबाइंड फैमिलीज में रह रही होती हैं, उनमें लेवल ऑफ स्ट्रेस क्या है और उनमें ये स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स कितने हैं। तो देखा ये गया कि ज़ाहिर एक तो माली तंगी और फिर ओवर क्राउडेडनेस
और फिर घर में जो सुकून ना होना, और वो सुकून इसी तरह नहीं होता ना कि आपकी लोगों से बन नहीं रही होती सही तरीके से, आपको वो या स्पेस माली नहीं मिल रही मसाइल होती, होते हैं, आपको रेस्ट नहीं मिल रहा होता, और आपका मतलब घर का बर्डन इतना ज्यादा होता है, आप अपने बच्चों को भी पूरी तरीके से टाइम नहीं दे पा रहे होते। तो ये तमाम चीजें खवातीन की ज़हनी सेहत को डिस्टर्ब करती हैं, बिल्कुल करती हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, अब थोड़ा सा अपने इदारे के हवाले से भी बताएं, कारवान हयात की हम बात करें, कब ये किस तरह से मरीजों का ट्रीटमेंट किया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली मेंटल हेल्थ फिजिकल इश्यूज़ की तरह उस तरह से एड्रेस तो नहीं की जाती, इसमें आपको फॉलो अप्स हैं, आपका प्रॉपर एक ट्रीटमेंट है, लोगों को गाइडेंस चाहिए होती है, तो इस हवाले से बताइएगा। जी, बहुत शुक्रिया। देखें, हमारा इदारा गुज़िश्ता 41 बरस से उन लोगों के लिए उम्मीद की एक किरण है, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मैं भी उस इदारे से ताल्लुक़ रखती हूँ जो कि रियली अपने लिए इलाज मुआलजे की सहूलत अफोर्ड नहीं कर सकते। ना सिर्फ ये, बल्कि अगर आप कराची के बड़े बड़े अस्पताल, सिंध के बड़े बड़े अस्पताल, पूरे पाकिस्तान के अस्पतालों का हाल देखें तो वहाँ नफ्सियात की OPD चल रही होती है, जहाँ पे डॉक्टर होते हैं और वो अद्वियात दे रहे होते हैं। कारवान यूनिक इस तरह है कि, और यूनिक इस तरह है, ये मैं बिल्कुल वसूख से कह सकती हूँ बात, कि पूरे पाकिस्तान में इस मॉडल पे कोई काम नहीं कर रहा। 2004 में सबसे पहली मर्तबा कारवान हयात ने रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम को शुरू किया। ये फ्रांस और US और UK में जो इम्प्लीमेंटेशन है उसी से इंस्पायर्ड प्रोग्राम्स हैं। और रिहेबिलिटेशन क्या है? रिहेबिलिटेशन ये है कि ना सिर्फ हम मरीजों का दवाइयों से इलाज कर रहे हैं, ना सिर्फ उनको साइकोलॉजिकल हेल्प दे रहे हैं, ना सिर्फ हम उनको, उनकी फैमिलीज को तैयार कर रहे हैं, उनको डील कैसे करना है, उनको क्राइसिस आए तो हैंडल कैसे करना है, उनकी आप बेहतर मदद किस तरह कर सकते हैं, बल्कि हमारा जो मोटो है वो ये है कि हम फंक्शनली रिकवर करने पे बिलीव करते हैं लोगों को। डॉक्टर साहब, एक तो आपका काम बहुत हम अप्रिशिएट करते हैं, जब आप बात कर रही हैं तो हम आपके अकाउंट नंबर्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन के फ्लैश कर रहे हैं। जो भी लोग आपको देख रहे हैं, आप जो मेंटल हेल्थ का एक बेड़ा आपकी कारवान हयात ने उठाया है, हमारी बेस्ट विशेस उसके साथ हैं। फर्स्ट थिंग इज़ टू रियलाइज कि ये एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी तादाद में हमारी खवातीन में एग्जिस्ट करते हैं, और फिर सेकंड थिंग, आपका कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है। हम चाहेंगे कि लोग आपको हेल्प करें ताकि आपका इदारा चलता रहे और खवातीन की मदद होती रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस इन द शो। डॉक्टर अरूसा हमारे साथ मौजूद थी। ट्रांसमिशन खत्म हुआ, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। हम आपसे कल मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।